ability to convey one's message is communication, and if it is conveyed successfully, it is effective communication skills. What I believe, that conversation is a very natural activity. Conversation keeps going on, right? You have a conversation formally, informally, verbally, non-verbally, right? Now, what is communication? Communication means conveying your message. And communication skill is an art that enables you to convey your message in a manner that people understand. So, how many of you are able to convey message confidently, successfully? This implies that your communication is excellent. Is your communication excellent or not? Yes. Yes. So, communication skill should be excellent, right? It is the requirement in most of the job interviews that a candidate should have excellent communication skills. If a candidate says, my communication is not effective, my communication is not effective, it means that candidate is still not ready to avail this opportunity. Do you agree with this? If a candidate says he doesn't have excellent communication skills, it means opportunity is there, but he is not ready to take that. He is not ready to opt it. So, what should be your statement? Your communication is excellent or not? Yes, sir. It is excellent. I would say straight away, this is not the area of experiment. This is not the area of improvement. This is perfect area which makes you the right candidate, which makes you the right choice for current opening in the organization. And language proficiency is a different thing. Language proficiency is a long term assignment. Is it so? And this is the area where everyone has certain area, certain scope of improvement, right? Like language proficiency might have objective of vocabulary enhancement, right? Vocabulary enhancement is always it has bright scope of improvement, and everyone should be ready for that. Language proficiency might have scope of voice and accent improvement. Voice and accent pronunciation you may improve. Language proficiency might have option of improving one's reading skills. It might have option of improving one's writing skills. It might have option of there is a bright scope of improvement, or we can say public speaking skills. I just want to convey that communication skill and language proficiency, these are two separate things. Never mix that. So you may have improvement in this section, which is very genuine and which is very important as well as necessary, right?
and everyone should think for it. Like, you had some difficulty in pronunciation, it's fine, it can be improved. I may also have many difficulties in language. I might not be aware of a word. So I have scope of improvement, and it is a natural thing. It is with everyone. But my single question is, should we mix language proficiency with communication skills? Never. That scope is different, and your communication skill is the basic criteria that is in the basic requirements. अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था, what are the basic requirements in a candidate that armed forces look into it. So that is single one quality is effective communication skills. It is the prime requirement, right? Now, what are the difficulties that you face, especially newcomers, those who said this line that I need to work on my communication skills, I have some difficulties. They can share their difficulties, and we can have counseling session. Yeah, sure. So at many times we find that when a question is asked, we are not able to answer it very effectively, but later on we find that this should also have been told, and that answer would be more correct. So in which type of problem is it? Yes. Is it a problem of language or? This is this we say post analysis, right? This issue is called post analysis rather than quick responsiveness. Post analysis in place of quick responsiveness, and it is a natural tendency that once our answer is given, we think it would have been better if I had answered in this manner. So if it is the case with you, so it's not a problem, it is anxiety. It's not a problem, it is just anxiety, it is overthinking, I would say. According to me, once you have given reply, it is the best reply. And if you come to know some more points later on, so realize it, and whenever your next opportunity is there, you may deliver them. But the answer that you have already given is the final answer. That should be the attitude. I would like to convey this problem with one problem that you might have seen some candidates, they keep checking answers after the examination, whereas some candidates, they say, okay, don't check answer sheet now, let's relax for some time. Have you seen the variety? Yes, sir. Now one group who is still involved in checking the answers is actually very anxious, and the group that is not checking the answers at all, because that group thinks that already this exam is over and now nothing is in our hand, is actually the one who is not so conscious, so anxious. तो कॉन्शियस होना अच्छा है, एंशियस होना अच्छा नहीं है. तो आप उसे कभी भी एंशियसली ना लें, ईगरली लें. अगर आपको कई पॉइंट्स मिलते हैं, if you come to know that these points I could have added more, take it positively. This I would say. So post analysis in place of quick responsiveness, this is the issue. We can resolve it just by taking that analytical approach in positive way. You will definitely get second chance. So when you get second chance, you may involve that creativity, and experience is the sequence of such analytical approaches. What is experience?
If I say I have rich experience of communication skills, it means I might have gone through these phases wherein I might have noticed these things in me also as a difficulty, and I would have overcome with my creativity, with my art of improvement. So, this is called experience. Today, you have some analysis, and later it will become your experience because you are taking it positively, right? So you are on a nice track. One should have analysis. One should have some add-ons after one's speech, but don't get worried. Instead, utilize those points in your next trial. That's it, right? Do you all agree with me? Yes, sir. Yes, yes. Sir, I'm finding difficulty in finding my strengths. Okay. Strengths. How to find strengths? How to find strengths in one's candidature, right? How many of you are ready with your strengths? Everybody is ready? And okay, now I would like to say the qualities that make you job ready are your relevant strengths to answer in an interview. Very simple. देखिए स्ट्रेंथ्स में कभी भी तीन चीजों को तो बिल्कुल नहीं बताना है: कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि स्ट्रेंथ्स में क्या नहीं बताना चाहिए. अगर कोई कहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ही मेरा स्ट्रेंथ है, इट मीन्स he wants the next person to check his confidence. And why to bet on such a thing wherein scope of learning is always there? So why to bet on that particular point? If someone says I have very good knowledge of physics or mathematics, this is my strength. So again, this world is not based on a single section. This world is based on variety of things. You might have heard a story wherein three people were sitting on a boat, and one said, I'm expert of mathematics. He asked the boatman, are you good at mathematics? The boatman replied, no, I'm not good at mathematics. He said, you wasted 30% of your life. The one who is not good at mathematics is actually not able to utilize his 30% of his life. Boatman nodded. He said, fine, I might have wasted. Later, the expert of chemistry asked, do you know about chemistry? He said, no, I don't know much about chemistry. He said, you wasted your 40% of your life. Now 30, 40, how much? 20. And that expert of physics, he could not take pause. He said, are you aware of physics? He said, no, I'm not aware. He said, you wasted again remaining 30% of your life. अब थोड़ी देर में बहुत ही तेजी तेजी लहरें आने लग गई, नौका हिचकोले खाने लग गई. अब बोटमैन ने पूछा, तैरना आता है? बोले नहीं. बोले अब तुमने 100% लाइफ बेकार कर दी, राइट? तो देखिए, स्ट्रेंथ यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी का नॉलेज अच्छा है. जैसे मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स में एक्सपीरियंस है तो मैं हर जगह चिल्लाता घूमूं, दिस इज ओनली माई स्ट्रेंथ. देखिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, सामने वाले की हो सकता है ना हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो आपके लिए जरूरी हो सकता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी करें, लेकिन नेक्स्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट ना हो. इसलिए कभी भी नॉलेज को बेट नहीं करना चाहिए. इसी तरीके से फिजिकल स्ट्रेंथ हर जगह काम नहीं आने वाली. कभी कभी मेंटल स्ट्रेंथ आपकी काम आती है. अब किसी ने कहा, सर स्ट्रेंथ तो मेरे शरीर में इतनी कि मैं क्या बताऊं, मैं घूसा मार दूं मतलब छेद हो जाता है दीवार में, मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर ऊर्जा है. तो वही है, नाउ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटल एनर्जी, यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एनर्जी, so somewhere it will not be useful. अभी मैंने साफ साफ कहा कि स्ट्रेंथ क्या है. स्ट्रेंथ वो है जो आपको जॉब रेडी बनाए.
सिंपल सा फंडा है जो आपको जॉब रेडी बनाए, वो आपकी स्ट्रेंथ है। अब आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए जस्ट आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप उसके लिए कितना रेडी हैं। जस्ट मैच दीज टू कॉलम्स एंड यू विल गेट टू नो योर स्ट्रेंथ। शुड आई गिव सम एग्जांपल्स what to say in strength? Not to be taken as strength. Now what to be taken as a strength? Strength में हम क्या बताएं, क्या बता सकते हैं? Of course leadership skills and हाँ देखिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये बहुत ही रिक्वायर्ड फैक्टर है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस इज मिसिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ऑफ कोर्स कोऑपरेशन, एडेप्टेबिलिटी, adaptability, determination, right? Initiativeness, initiative, punctual, many qualities are there. So I think calmness is well. Calmness. Of course, ability to work in pressure. Ability to work in pressure. This can be a strength. All right, be seated, gentlemen. You can choose the relevant point. Negotiation skills. Yes. Ability to make a person understand what your stand is. उसको मोल भाव करना, उसको समझा करके ही रहना, तो अच्छी बात है जो नेगोशिएट कर ले। पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, ऑप्टिमिज्म वी कैन से। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? क्या वीकनेसेस कैसे बताएं? वीकनेसेस बताने में, दोस्तों को फोन कर, वीकनेसेस बताने के लिए बस यही है कि आप वो वीकनेसेस ना बताइए जो बहुत ही हार्श ट्रुथ हो। समझना, ट्रुथ हो बट हार्श हो, तो हार्श ट्रुथ अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसी वीकनेसेस जैसे अभी मैंने आपको हाईलाइट किया कि कम्युनिकेशन स्किल इज द रिक्वायरमेंट देयर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इट एज अ वीकनेस, so this is something that is going in wrong direction. This is something that is going in opposite direction. You are diverting the discussion. So one should not tell such weaknesses. One should tell scope of improvement, right? As a weakness, one should share scope of improvement. In fact, not improvement, enhancement. Like the best example for scope of improvement is, अब देखिए, weak handwriting is something which is the symbol of weak personality, right? So weak handwriting होती नहीं है, हैंडराइटिंग पुअर होती है। और हैंडराइटिंग वो सेक्शन है जो खुद को पसंद आना चाहिए। यस अमीश, यस। जैसे मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं, जैसे आपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये मत कहिए इट इज माय वीकनेस,
ये कहिए आई वॉन्ट टू एनहेंस माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, इसमें बहुत कुछ है इंप्रूव करने के लिए। तो आप इसे कह सकते हैं एंड विश टू गिव मोर टाइम फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जी हाँ, क्योंकि अभी तक आप एकेडमिक्स में थे, अब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को और अच्छा करना चाहते हैं। विश टू enhance my stamina in these things, like running का स्टैमिना हो गया, ठीक है, आपका वेट लिफ्टिंग का स्टैमिना हो गया, जो भी आपके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है, जो आपके जो अभी मैंने कहा था स्ट्रेंथ वो जो आपको जॉब के लायक बनाए, एंड वीकनेस वो जो आपको जॉब के बेसिक रिक्वायरमेंट्स में फुलफिल करे। तो ऐसी वीकनेस बतानी चाहिए। अभी किसी और ने कहा था वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट, कह सकते हैं बिल्कुल। इंग्लिश स्पीकिंग ना कहिए, ये कहिए कि आई विश टू वर्क ऑन माई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम करना हैज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। एनी वन कैन से, कोई भी कह सकता है, मैं भी कहूंगा आई विश टू वर्क ऑन माई लैंग्वेज स्किल्स मोर एंड मोर। अच्छी बात है, वर्क करिए। हाँ, अब देखिए ऐसे किसी मुद्दे, संगीन मुद्दे को लेकर के मत बैठिए कि ओवर थिंकिंग इज माई वीकनेस। बोले फिर क्या करो, बोले अब ठीक कर रहा हूँ, अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा। बोले कब से नहीं करो, बोले हाँ वो लास्ट टाइम मेरा एक भाई मिला, उसने मुझे ऐसा बताया कि मैं ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया। इसका मतलब भाई आपसे ज्यादा अच्छा है। बोले भाई को बुला दो, मैं उसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डू नॉट, अभी मैंने आप लोगों के फीडबैक में लिखा है अवॉइड इमोशनल डिस्कशन। कभी भी इमोशनल डिस्कशन, रिपेंटेंसेस को लेकर के मत बैठिए, इमोशनल डिस्कशंस लेकर के मत बैठिए। इमोशनल डिस्कशंस का मतलब यही है कि ओवर थिंकिंग इज माई वीकनेस। सर आप ही कुछ कर दो, पता चला वही जिनका जो इंटरव्यू ले रहे थे वही तुम्हारे मोटिवेटर बन गए। अरे ओवर थिंकिंग करना बहुत बुरी बात। बोले यस सर, आज मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, आज से मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा। बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बोले ठीक है सर। तो आप काउंसलिंग करने गए हैं कि कराने गए हैं? आप काउंसलिंग करने गए हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले काउंसलिंग मैंने इसी चीज की कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उसको वीकनेसेस में कभी नहीं डालना है। कम्युनिकेशन अच्छा है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, राइट? यस, नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन? My difficulty is that I am aware about stage communication and communication. हाँ, मैंने आपकी फीडबैक में लिखा भी है कि आप बहुत ही धीरे बोल रहे थे, ठीक है, और जब भी आप कम्युनिकेट करें तो सोचते हुए, एक होता है कंसिडरेट वे ऑफ स्पीकिंग और एक होता है पैशनेट वे ऑफ स्पीकिंग। तो कभी भी कंसिडरेट होकर के बोलना पसंद ना करें, बल्कि पैशनेटली बोलें, ठीक है। मैं लिख देता हूं, अवॉइड स्पीकिंग इन कंसिडरेट मैनर, डिलीवर योर मैसेज पैशनेटली। अब जो आपने पॉइंट बोला है कि स्टेज फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग मेरे से नहीं हो पाती है। अगर मेरा कोई फ्रेंड मेरा इंटरव्यू ले रहा होता ना, बहुत अच्छा इंटरव्यू होता, बस वही है, उनसे मेरी जान पहचान थी नहीं, अजीब सा उनका चेहरा था और मेरा भी मन नहीं हुआ ज्यादा बात करने का, मैंने अच्छे से उनसे बात ही नहीं की। तो मैं आपको यहाँ पे काउंसिल करना चाहूंगा कि आप जिस स्कोप में हैं, जो आपने डोमेन सेलेक्ट किया है अपने करियर का, उसमें आपको वैरायटी ऑफ पीपल विल बी देयर, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक ही मोटो है कि मेरे पास कुछ जानकारी है दूसरों को देने के लिए, और वो जानकारी देना मेरा मैटर ऑफ प्लेजर है या मैटर ऑफ सॉरो है। बस एक ही बात आप अपने मन में बिठा लीजिए, आपको बोलने में हमेशा प्रसन्नता होगी, ठीक है। बोलो, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स
is a matter of pleasure for me. It is a matter of pleasure for me. It is not a matter It is not a matter in which I should become serious. in which I feel serious. I should share I should share my details my details happily, happily, energetically, so that so that others should understand. others should understand. That's my motto. That's my motto. That is the reason I'm here. That is the reason I am here. I must talk I must talk happily, happily, energetically, energetically, confidently, confidently, so that I can convey the right image. so that I can make the right message. This analysis is this much, right? आप बस इतना ही ध्यान रखें. Sharing my information with others is the matter of pleasure for me. This thought clarifies the objective of being on the stage. अगर आपको अपने स्टेज पर होने का ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑडियंस आप ही की है, और अगर आपको अपने स्टेज पे आने का ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो ऑडियंस को फेस करना आपके लिए चैलेंजिंग होगा. जब आप स्टेज पर आते हैं, खड़े होते हैं, उसी समय आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए कि आज मैं अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देने वाला हूं. आज मैं जो क्रॉस क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका बहुत सटीक आंसर देने वाला हूं. आज मैं जितने भी ये रैपिड फायर पूछेंगे ना, ऐसा गजब का सुनूंगा और एक एक क्वेश्चन का सलीके से आंसर दूंगा, एक सिंक्रोनाइज तरीके से आंसर दूंगा. तो जब आप वहां से खड़े होकर यहां पर आते हैं स्टेज पर, वहीं पर आप अपना गोल सेट कर लीजिए. व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे? आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने जितनी भी तूफानी चीजें करी आज तक वो ऐसी ही करी. जैसे बाइक चलाना सीखा, अचानक चल गई, अरे तो चलती है. अगले दिन से आपको और मजा आने लगा. इज इट सो? Yes, sir. जब आप स्टेज पे आइए तो एक दिन कमाल, जैसे उस दिन आपने बहुत ही अच्छे से बोला, सभी ने बहुत तारीफ की, तो वो दिन आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा. ये होता है. नहीं, पहले शी हैड मेनी डिफिकल्टीज इन कन्वेइंग हर मैसेजेस. प्रियंका, अभी प्रियंका इज कॉन्फिडेंट, शी लाइक्स टू टॉक. सो जैसे ये बात आ गई सामने कि शी लाइक्स टू टॉक, लोगों ने कहना शुरू किया, मैंने कहना शुरू किया, इन्हें खुद भी एहसास होने लगा कि some change is there in me. So कम्युनिकेशन स्किल्स एक एक्सपीरियंस है, एक आर्ट है, और वो आर्ट तभी निखरती है जब उसे आर्टिस्टिक तरीके से लिया जाए. राइट? तो ये आर्टिस्टिक तरीका है क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी डिटेल्स मुझे हैप्पीली, एनर्जेटिकली ही कन्वे कर रहा है. ये मेरी डिटेल्स है. अब जैसे कुछ बच्चों को इंटरव्यू में डर लगता है कि पता नहीं सर क्या पूछेंगे, वही दूसरा तरीका है. Come on, say with me. It's a great pleasure It's a great pleasure to meet such an honorable personality. to meet such a personality. I have been putting my efforts I have been putting my efforts for the same day, for the same day, and finally the day has come. and finally the day has come. I have curiosity I have curiosity to inquire to inquire the level of questions he'll ask. the level of questions he asks. I'm very happy I am very happy to meet that dignitary. to meet that dignity. No fear, No fear, excitement is there. excitement is there. So it's only way of thinking. It's only your thinking. एक ग्लास में पानी आधा भरा है या आधा खाली है, वे ऑफ थिंकिंग ही तो है. Yes, sir. बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी सेलेक्ट होकर के आए उन्होंने यही बताया कि दे आर नॉट देयर टू रिजेक्ट यू, दे आर देयर टू Select you. प्रोवाइडेड व्हाट यू विश. आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि अब आप ऐसी बात उल्टी सीधी बातें करेंगे, सर बहुत ही इमोशनल, तो वो पूछेंगे लास्ट टाइम कब इमोशनल हुए? बोले अभी 2 दिन पहले इमोशनली हो गया. अब दिशाएं बदल गई, क्वेश्चंस का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा. वो भी आपसे हंसी मजाक करेंगे, थोड़े हो सकता है आपकी अदर डायरेक्शन में काउंसलिंग करते हैं. बोले तुम तो मॉडल लगते हो. बोले सही में सर. काउंसलिंग आप अदर डायरेक्शन में ले ही ना जाए.
ठीक है। सो बेटा धीरे धीरे आएगा ये टाइम। अच्छा एक चीज और है, कम्युनिकेशन स्किल एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको आप जस्ट वन डे में आप सोचेगी एकदम रिफाइन हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होगा और उस दिन जब मैं बोलूंगा ना लोग केवल सुनेंगे। तो ऐसे हाइपोथेटिकल आइडियाज ही मत रखिए, क्योंकि वो दिन कब आएगा, वो दिन आपको ही पता है, जिनकी प्लानिंग ज्यादा करते हैं वो दिन कभी नहीं आता। इज इट सो? यस सर। तो जो आज का मोमेंट है वही फाइनल मोमेंट है। बहुत प्लानिंग मत करिए, कीप कम्युनिकेटिंग ये। और जब आप बात करते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता रहेगा, आपको सही गलत की जानकारी होती रहेगी और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता रहेगा। और कोई क्वेश्चन? How to remove the stress when the interviewing officer asks the question and we don't know the answer? अगेन आई वुड से, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूट जाता ना। आपका जो अल्टीमेट गोल है वो केवल एक क्वेश्चन पे आधारित है या फिर अभी और भी अभी स्कोप बाकी है? But when the IO asks the next question and we don't know the answer. मैं वही बोल रहा हूं, सिंपल है, बी होपफुल टिल योर इंटरव्यू लास्ट। जब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है होपफुल रहिए। यहां पे आपका जो होप है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा फील होता है कि आज का परफॉर्मेंस मेरा अच्छा नहीं था तो आप मायूस हो जाते हैं, लेकिन आपको मायूस नहीं होना है। जब तक इंटरव्यू चल रहा है कोई ना कोई आशा की किरण आपके मन में रहनी चाहिए, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जब नॉलेज मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो नॉलेज मेरी वीकनेस भी नहीं होगी। इज इट सो? क्योंकि नॉलेज 100% किसी चीज की होना ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या है कि एवरीवन इज ए लर्नर। सभी कौन है? देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग विद एवरीवन। सो आप जेंटली कन्वे करें मैसेज, सर एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अपडेटेड विद दिस, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। एंड वर्क करिए भी। ऐसा भी नहीं कि आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया और वर्क कुछ नहीं किया, क्योंकि वर्क नहीं करोगे तो ये रिवील हो जाएगा। कभी ना कभी उन डेज में रिवील हो ही जाएगा। अगर आपने वर्क किया है देन इट इज अगेन बेनिफिशियल एंड उनको भी कन्वे हो जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड दैट थिंग। किसी चीज को जानना और किसी चीज को ना जानना केवल अंतर है अपॉर्चुनिटी का। बताइए है कि नहीं? Yes, sir. आपको वो अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे मिल गई तो आप जान गए, आपको वो अपॉर्चुनिटी देर से मिली तो आप देर से जाने। अब इसमें कौन सा बहुत बड़ा किसी का टैलेंट आ रहा है? आज का न्यूज़पेपर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसे आज की बातें नहीं पता, आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल गया। तो किसी चीज को जानना और ना जानने में अंतर केवल अपॉर्चुनिटी को अवेल करने का है। मैंने नहीं अवेल करी, थैंक्स फॉर दिस अपडेट, आई अवेल दिस। सो बी होपफुल। इसमें आपका एटीट्यूड थोड़ा बेशरम होना चाहिए, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। सर स्ट्रेस जो बढ़ता है तो अरे स्ट्रेस का एक मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो। एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की वालों की तरफ से उसको जम के धोया गया, बहुत मारा गया, गिरा के। तो उठ करके बोला तो फिर मैं रिश्ता कैंसिल समझूं? मतलब अभी भी उसे एक होप है, ऑप्टिमिज्म की हाइट ये होती है। ठीक उसी तरीके से आपको कितना भी वहां पे उल्टा सीधा कहा जाए, ये डोंट, ऐसा हुआ है कई बच्चों को बहुत कुछ बोला गया, यू डोंट हैव दिस नॉलेज, यू आर जस्ट ऑफ नो यूज, यू आर यूजलेस। फिर भी आपके चेहरे पर एक पॉजिटिविटी है। फाइन सर, आई हैव गॉट टू नो अबाउट द एरियाज वेयर आई नीड टू वर्क अपॉन, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस।
फिर भी आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड है। यही तो है एबिलिटी टू वर्क इन प्रेशर। एक्चुअली वो आपका एक तरह से टेस्ट चल रहा था, ये भी एक टेस्ट है, आपको प्रेशर में डालना। रैपिड फायर क्वेश्चंस क्या है? प्रेशर में डालना। ये इतने सारे क्वेश्चंस का सेट बना के पूछने का मतलब है कि आपको प्रेशर में डालना। तो सिंपल है, जब तक है जान तब तक आपको मिशन पे रहना है। और यही आप कहते भी हैं कि सर आई एम ऑलवेज होपफुल, तो वो टेस्ट क्यों ना किया जाए? तो टेस्टिंग में फेल ना हो। यस, आपका क्वेश्चन था। Sir, can we mention that having more time on screen or spending more time on screen as our weakness? मेरा मानना है कि वीकनेस भी एक बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है, ये हार्श क्वेश्चन नहीं है। और इस स्वीट से क्वेश्चन को आप अपने फेवर में यूटिलाइज करिए। जैसे अगर आप ऐसा कुछ बताते हैं जो वास्तव में आने वाले दिनों में आपकी रिक्वायरमेंट है और अभी आप उसमें टाइम नहीं दे रहे थे, अब आप टाइम देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये आपको फेवर करेगा। और कोई ऐसी चीज की सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की अपने स्कूल डेज में, अब मैं पढ़ने लगा हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुछ डीमेरिट्स को दिखा रहा है, रिपेंटेंस को दिखा रहा है। पछतावा नहीं दिखना चाहिए। क्यों? इंटरेक्शन में पछतावा होना चाहिए कभी? स्क्रीन पे आपने ज्यादा समय दिया, उसके बेनिफिट्स भी तो आपको हुए। उसके बेनिफिट्स में आप बेनिफिट्स क्यों नहीं बता रहे कि आपको आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ, आपको बहुत वैरायटी कंटेंट मिला, ये बेनिफिट्स हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से मेरी आईसाइट वीक हो रही है, मेरी वीकनेस है। दिस इज समथिंग जो कि इस क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। मतलब वहां से बॉल आई और आपने नो बॉल करके छोड़ दिया। No, sir, but when you will ask me why it is as a weakness, so I can mention that generally I prefer to read webtoon on screen only rather than buying the book. नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसी क्वेश्चन में अगर आप कुछ ऐसा बताएं जो वास्तव में और आपको आपके टैलेंट को निखारे, तो इस क्वेश्चन का बेहतर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा, वन शुड टेल सच वीकनेस विच इज द लॉन्ग टर्म गोल, विच इज द स्टेप, which is an important step for your long term goal। यहां पे मेरा सजेशन यही है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आप वो बताएं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल का एक स्टेप हो। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में आप जा रहे हैं तो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए कि नहीं? वो मेरा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। स्क्रीन टाइम तो घटता बढ़ता ही रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, मुझे पता है मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स मेरे और होने चाहिए, मुझे पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। ये बात अगर मैं कहूंगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि मुझे सोशल एक्टिविटीज में और इन्वॉल्व होना चाहिए, और टाइम देना चाहिए, तो मुझे अपने उस बिजी शेड्यूल से सोशल एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालना है। इज इट सो? मुझे दिए गए फीडबैक पे काम करना है, इसलिए मुझे वैरायटी ऑफ फीडबैक की जरूरत है। इसलिए मैं डिफरेंट क्विजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। दैट्स माय स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट्स माय एरिया वेयर आई एम वर्किंग, राइट? तो ये उस क्वेश्चन का क्या है, यूटिलाइजेशन है। और इस क्वेश्चन का एक ऐसी दिशा में मोड़ देना जिससे आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो यूटिलाइजेशन नहीं। ठीक है, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या? Like we can say I want to improve my spelling errors. Like Definitely, I want to improve my spellings, my handwriting. You may say that, लेकिन handwriting and spellings ये आपके observation के भी पार्ट हैं। yes sir. और किसी का अगर ऑब्जर्वेशन वीक है तो फिर वो उस कैटेगरी में नहीं फिट हो रहा। मैंने कहा ना, जॉब रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिए। Yes sir. तो ये वीकनेस आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पड़ सकती है। Like sir, we are Indians and some of the words are like we can take the example of honest. If a person is like listening it for the first time, he will write honest O and that. Yes. As we know that it is H
there. H is silent there. Mhm. So it may be a problem for those who is listening for the first time. This can be added to this scope of learning, that I wish to explore more and more words to update my knowledge. Yes, This you may say. yes, sir. You may say that I wish to explore new words so that I can come to know their spellings. Yes. Thank you. Yes. Sir, if someone is cheerful in giving the answers, but he is using his hand movements, how will it reflect to the interviewer? Ideally, one should avoid unnecessary hand movements. Necessary hand movements are there, it's fine, but unnecessary hand movements are not required. For example, you have taken a position, alert position, and you are listening attentively. So no need of any hand movement, but you are instructing your friends, you are sharing your information. That time you have little bit hand movement, so that will be considerable, right? So unnecessary hand movements are not required. जैसे मैं अक्सर टोकता हूँ बैठे बैठे आप लोगों के पैर हिलाने की हैबिट को, तो ये अननेसेसरी है, इसकी क्या जरूरत थी? अचानक से पैर हिलाने लग गए, ये कौन सी एक्सरसाइज है? बोले ये वर्केबल एक्सरसाइज है। वो मूवमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, खुद को ही ऑड लगता है। और ऐसी चीजों को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप अपनी परफॉर्मेंस को एक बार रिकॉर्ड करिए, आपको खुद पता चलेगा। आजकल स्मार्टफोन सबके साथ है, बहुत अच्छी डिवाइसेस हैं, अच्छा यूज करिए। एक दो प्रेजेंटेशंस आप डेली रिकॉर्ड करिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपके एक्सप्रेशंस, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे थे और उनमें क्या जरूरत और होनी चाहिए। तो अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा वहां पे कोई रूल भी नहीं किया, हल्का सा आपने हैंड मूवमेंट कर दिया, आपके मार्क्स कट गए। बोले क्या किया? बोले उसने उंगली हिला दी थी। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग अपने पैर बदलने लग जाते हैं जब व्हेन दे स्टैंड, मतलब पहले एक पैर के बल खड़े हैं, दूसरे पैर के, व्हाट इज दिस? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी नर्वसनेस को शो करती है। तो कैंडिडेट शुड नॉट बी नर्वस, राइट? ओके, नाउ शुड आई शेयर द फीडबैक? ओके, दिस कॉपी, यस, यू हैव गुड कमांड ऑन लैंग्वेज। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो पॉइंट्स ज्यादा कवर करूंगा जिनको आपको इंप्रूव करना है, ठीक है? बाकी पॉजिटिव फीडबैक सभी का है, सभी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे आए हैं। अच्छा, ये जैसे स्टेटमेंट्स को अवॉइड करिए, अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी क्लिशे। क्लिशे मीन्स phrases repeatedly used in our conversation, उनको हम लोग क्लिशे कहते हैं, ठीक है? जैसे आई थिंक का यूज लोग बहुत करते हैं, तो आपने कह दिया आई थिंक आई एम क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो स्टेटमेंट थोड़ा बदल गया। अरे आई थिंक क्या, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक नहीं। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपने क्या नहीं यूज किया है, मैं एग्जांपल के लिए कह दे रहा हूं। इफ आई टॉक अबाउट, it's not if I talk about, you must talk about, because you are here to talk only, isn't it? तो इन एक्सप्रेशंस को हमें ये आप तभी कर्व कर पाओगे जब आप फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे। आप खुद ही सोचोगे व्हाट वाज द नीड टू से दिस स्टेटमेंट। हाँ, एज यू ऑल नो, एज यू नो, यू नो, ये एक्सप्रेशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आपने ऐसा कोई नहीं बोला, आपने केवल एक ही बोला था, आई थिंक, ये वाला। एंड हाँ, if you stand in front of others, so have alert body language, chest out, stomach in, look forward,
and listen to others attentively. जब आप दूसरों को ध्यान से सुनेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज इधर उधर कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, राइट? तो चेस्ट आउट स्टमक इन ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? और बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप अगर अपनी आप बस एक प्रैक्टिस शुरू करिए, मेरे साथ बोलिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन. This will teach you the essence of communication skills. You'll improve your body language, eye contact, expression, and these things will be natural as well. These things will not be fake. तो ये बहुत जरूरी है कि आप फॉर्मल प्रैक्टिस करें. जैसे मैंने क्यों बोला कि कॉपी पेन निकाल के बैठिए, फॉर्मल. अब कोई यूं ही मतलब पेन चला रहा है, डेस्क पे पेन चलाए दे रहा है, कुछ आकृति टाइप बनाए दे रहे हैं, क्या मतलब डेस्क पे पेन क्यों चला रहा हो? लिसन टू द पर्सन केयरफुली. एंड यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स. अच्छा, अपना अपना सेल्फ इंट्रो आप सभी लोग अभी भी लिख लो जल्दी से. सेल्फ इंट्रो शुड बी सिंक्रोनाइज्ड वेल. सिंक्रोनाइज मतलब डिटेल प्रॉपर तरह से हो. जैसे सभी लोगों को पता है, यू विल स्टार्ट विद विशिंग, देन नेम प्लस प्लेस, कहां से आप हैं. अपने प्लेस के लिए एक टैगलाइन भी बोल सकते हैं. एंड प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, ये लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है. एंड इंटरव्यू के लिए आए हैं तो क्यों ना मैं अपनी स्किल्स एंड क्वालिटीज साथ में ही बता दूं, ठीक है? क्या मेरे अंदर स्किल्स हैं, क्या मेरे अंदर क्वालिटीज हैं, वो मैं बता दूं. एंड फिर जो मेरा बेस है वो मेरा एकेडमिक्स है, तो फिर मैं अपने एकेडमिक्स के बारे में बात करूंगा. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वही मेरे को बताना तो. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ग्रुप एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जरूर बताएं, क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया है. सो लेट मी राइट लाइक दिस. So this is called synchronized pattern of giving introduction. Means all details are in order. ठीक है? And after this you can talk about your achievements. And after achievements you can add your area of specialization, especially from your stream, academic stream. एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताने से आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशंस नहीं बतानी पड़ेगी. कई बार होता है, अरे सर क्या आपने पूछ लिया, क्या गजब का पूछा है, ये मेरे उसमें था ही नहीं, पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. इससे अच्छा है आप पोलाइटली अपने इंट्रो में ही बता दें कि ये मेरा एरिया है जिसपे मैंने रिसर्च किया है. अपने आप को और बेहतर प्रेजेंटेशन देना है तो आप अपने वेबिनार्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर, पर्सनालिटी एक्सपोजर. अगर आपको कुछ पर्सनालिटी एक्सपोजर है, ठीक है, वो भी आप अपने बता सकते हैं कि आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए, वेबिनार्स अटेंड किए, एंड कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, जो भी आपने की वो बता सकते हैं. सेमिनार और वेबिनार में क्या डिफरेंस है? जो वेब पे हो वो वेबिनार, बोलो, सेमिनार ऑन वेब इज वेबिनार. सेमिनार विदाउट वेब इज एक्चुअली ए सेमिनार. तो ये सेमिनार क्या है? यही सेमिनार अभी चल रहा है, किसी जानकारी को कन्वे कर रहा है, सेमिनार है, isn't it? कॉन्फ्रेंस मतलब सबको राउंड, हाँ, कॉन्फ्रेंस टेबल पे बिठा करके डिस्कशन करना. राइट? Now you can talk about your family background and hobbies and interest, aim of life,
एंड कॉन्फिडेंटली आप बोले इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे लास्ट में इशारे कर हो गया, कुछ और पूछो। कुछ बच्चे गुस्सा आए थे कुछ वो पूछना भूल लो, और क्या बताएं, मेरी जिंदगी खुली किताब है। इससे अच्छा है आप शब्दों में ही अपनी भावनाएं बता दें कि सर मेरा इंट्रो हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने कहा था कि मेरा आंसर आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अवॉइड, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति, हाँ, एग्जैगरेशन इन इंटरव्यू। नहीं, मैटर ये नहीं कौन बोला था, मैटर आगे से नहीं बोलना। अब तुम लोग आदमी ढूंढ कौन बोला, सबको ध्यान रखो। मतलब ऐसा हाईफाई स्टेटमेंट मारो ही नहीं कि ऑल्दो मेरा आंसर हो सकता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं दूंगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखे दे रहा हूं जिससे कि लोगों को याद रहे। ऑल्दो माई आंसर would not be satisfactory, but I would like to give, since you are curious to know. All right, and basic requirements of the organization in a candidate. One should be quick responsive, round the time. One should develop this stamina of communication. एक फीडबैक मैं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा, एक अपना अपना असेसमेंट आप लोग जरूर करें कि आप 1 घंटे तक, 2 घंटे, 1.5 घंटे तक फॉर्मल इंटरेक्शन कर पाते ही नहीं। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे स्टार्टिंग के 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक बहुत एक्टिव रहते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन जैसे ही वो टाइम लिमिट बढ़ती जाती है फिर उनको थकान से होने लग जाती है, फिर लगता है बंद करो, मतलब फिर उनके अजीब से रिएक्शन आने लग जाते हैं, जैसे अचानक से रुक जाना, जबकि क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन अ कैंडिडेट। तो जेंटलमैन, ये क्वेश्चन कितना इजी था, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन अ कैंडिडेट। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप अचानक से रुक गए थे, यू कुडंट रिप्लाई, आपने मना कर दिया, नहीं रिप्लाई किया। इसमें केवल केवल काम किसका होना है, ड्यूरेशन का, कितना ड्यूरेशन आप फॉर्मली रह पाते हैं। तो ये भी एक असाइनमेंट है, ठीक है। हैव योर सेल्फ असेसमेंट फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, और इस सेल्फ असेसमेंट में आपका रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप पूरे दिन फॉर्मली कम्युनिकेट करके दिखाइए, ये आपका एक्सपीरियंस जरूर ऐड ऑन करेगा, ठीक है। हंसते रहना और सिस्टम की मजे लेते रहना इज वेरी कॉमन, बट पूरे दिन फॉर्मली कम्युनिकेट करना, लॉजिकली सोचना, लॉजिकली रिप्लाई देना इज ए हैबिट डेवलपमेंट। डू यू अग्री? तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट डेवलपमेंट। 1-2 दिन आप लोग ऐसा करिए, उसके बाद फिर से हंसी मजाक वाले मूड में आ जाइए, जब आपका लगे कि यस सर आई कैन डू दैट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। एंड पहले से कोई प्री कंसेप्शंस लेकर के मत जाइए। डू नॉट शेयर प्री कंसीव्ड आइडियाज। प्री कंसीव्ड आइडियाज का मतलब, हाँ, जैसे
पहले से आपके दिमाग में था अगर किसी ने ऊट पटांग का क्वेश्चन पूछा तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंस है. यू आर देयर टू गिव रिप्लाई इन यस और नो, नॉट टू एक्सप्लेन थ्योरी बिहाइंड दैट. ठीक है, तो बी रिस्पॉन्सिव इवन इफ द क्वेश्चन इज इनजेन्युइन. ठीक है, अगर क्वेश्चन इनजेन्युइन है तो भी रिप्लाई दें. ठीक है, रेस्ट इज फाइन. पहले से आप ये दिमाग में नहीं बिठाएंगे कि मुझे ऐसा ही बोलना है. ठीक है, हुज कॉपी इज दिस? सर मेरा Self intro, I have already explained. You have clarity in your voice and you follow punctuation. You have a very good way of explanation, right? And जब भी आप डिग्निटरीज का नेम लें तो उनके पहले उनका आर्टिकल जो रैंक है वो जरूर लगाएं. जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, नो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राइट? It is a international or it is an international. Yeah, and get to know more about your city because freedom fighters and all you were not aware of. And this copy is, yes, loud voice, confident, but you speak with fast rate of speech. Seems you are in hurry. So try to improve this thing. And if you will approach them, आपको ये कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, कंडीशन प्रेजेंट में होती है. कंडीशनल सेंटेंसेस हैव कंडीशन इन प्रेजेंट. तो हमें ये नहीं कहना है कि इफ यू विल अप्रोच देम, बल्कि हमें कहना है इफ यू अप्रोच देम यू विल फाइंड देम वेरी एक्टिव. ऐसे. Yes, sir. So this is the point. And return it back. Backword is not required. तो जो superfluous words हैं उनको ध्यान देंगे. She says that she has problem in communication skills. Now, any problem? No, sir. Everything is fine? Yes, sir. Your communication is Excellent. excellent. Yes, this should be the attitude. And you should write some articles so that you can avoid your grammatical errors. Yes, sir. Little bit there are. So Yes. that also you can eliminate once you write something and get it checked by me. Yes, sir. Right? Should involve repentance in discussion. Never ever. Do not have any repentance. I already told, right? Yes, sir. Otherwise the discussion will be in that direction. And ये किसी एसेसन ने कहा था डिसक्वालिटीज, डीमेरिट्स बोलो भाई. तो उन्होंने डिसक्वालिटीज बोल दिया, तुमने भी डिसक्वालिटीज बोल दिया. वर्ड प्रॉपर होना चाहिए, डीमेरिट्स, राइट? डिसक्वालिटीज बोलो, डिसक्वालिटीज, डीमेरिट्स. अब जैसे आपकी मदर आपके लिए चिंता बहुत करती हैं, ये उनका नेगेटिव क्वालिटी. Yes, sir. She worries a lot. She worries a lot. She, you may say, she thinks I need more and more care. She thinks I need more and more care. Yes, sir. So I convince her it is not required that much. ऐसे बताइए, मतलब किसी भी बात को अब पेरेंट्स की नेगेटिव क्वालिटी तो बिल्कुल नेगेटिव मत बताइए. अरे बहुत चिंता करती है. उनका चिंता करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है, ऐसा. Yes, sir. तो उनको आप ऐसे बता सकते हो. Thank you. This copy, confident voice, good command on language, and you should have little smiling face as well, right? So that will add on pleasing expression, right? We're looking little strict. And fear of height, fear of darkness, no need to add. Gentlemen, just listen. So since it is not relevant with your selected field, and concepts of electrical basics that you must be aware of, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अपनी स्ट्रेंथ को अपने रूट्स में देखें. आपके रूट्स क्या हैं? जो डिग्री आप करके आए हो, तो उस डिग्री का एसेंस साबित करना आपका परम कर्तव्य है. इससे
बड़ा कोई आपके लिए कोई और वर्क है ही नहीं। सर इसमें एक डाउट था। हाँ सर जैसे मैंने बीटेक किया तो है बट उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं किया था बिकॉज मुझे बीच में ही रियलाइज हो गया था कि आई हैव टेकन अ रॉन्ग स्ट्रीम, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना था। Okay. बट आई कांट से दिस इन द इंटरव्यू हम्म, बिकॉज हम्म। आई एम ऑप्टिंग फॉर एसएससी टेक। देखिए, अपने स्ट्रीम को आप प्रेजेंटेबल बनाएं और अपनी स्ट्रीम को उस लेवल तक जाने जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी हाईफाई नहीं आता, इट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि अब आपका जो स्कोप है वो लीडिंग रोल्स में है, लेकिन बेसिक्स आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बेसिक्स को रेडी कर लें, डिस्कशंस करें और अपनी स्ट्रीम को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अपने प्रोफाइल को लेकर के ट्रुथफुल होना और उसके लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। माई पेरेंट्स डोंट जज मी, आई लाइक दिस। तो ये स्टेटमेंट की जगह आप बोल सकते हैं कि माई पेरेंट्स डोंट आस्क मी क्वेश्चंस इन डेप्थ सिंस दे ट्रस्ट मी। जज तो हमेशा करते रहते, जज करते हैं तभी तो दे ट्रस्ट यू, है ना। लेकिन वो अननेसेसरी डिस्कशंस नहीं करते क्योंकि यू आर अ रिलायबल पर्सन, राइट। हाँ, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? यस। Sir, as you have mentioned earlier that if we have got extra marks in any subject in our mark sheet, then they ask from that stream. Sir, from that subject. Then what if you are mentioning that subject as your weak subject and still you got good marks in that subject? Okay, that will definitely be justified. That you will have to justify with your explanation. How you got this good number of things, what a great score you have got. So how you got that? You have to justify that. Sir, but how, like, I don't like that subject, but still I had to get marks for the percentage, so I studied in this. According to me, you should mention your favorite subject in your intro only. So that will not create any illusion once you are clear with that. And he raised any question that your favorite subject is that and you have got better marks in this subject. So this is a very considerable thing. You can explain that the paper was easy, or that day I got all the questions in my covered area, so I answered all of them. So that made me gain this kind of great score. Thank you. And this copy, yeah, should speak loudly, should give details with confident approach, should avoid considerate way of thinking, should answer lengthy questions completely, and should work on rapid fire questions. Sir, I have taken the 1 year gap. Hmm. So how do I handle the questions? What did you do in that 1 year? Sir, for coaching purpose so that I focus more. You mentioned that thing. Failures are the part of experiences. That preparation gave you an experience, and you are happy with that. It was a good decision. So it's not a gap. So It is why you a are planned gap. screened out in SSLC? Hmm? So they asked me, so why you are screened out in? I was, because that time I was not ready this much the way I am ready right You now. are taking a coaching also. No. Now here you are wrong. Why? Because you are mentioning those things in higher priority. You just mentioned that I could not make it because I was not up to that expectation that particular time, but now I am, right? So you should justify your details in your perspective. You better answer this thing in your way. That will be more logical, right? Okay, shall we wind up the discussion? Yes, sir. So tomorrow same activity will take place. All of you will come here one by one and will be given feedback, right? Yes, sir. So work on it.